I am sure we all are very interested again for our next special guest to listen his experience. Mr. Lalit Kumar sir, uh, I just want to introduce him specifically because he has been working with students for last 20 plus years. And he himself is an IIT Bombay alumnus. And he has mentored more than 300 IITians in his teaching career. 3,000. I'm so sorry. I'm so sorry, sir. Yes, this is, and I think it's right that sir corrected me because when you talk about this number and when I say IIT, so recently there has been an article in many newspapers about Kota crash course, which is unfortunately became famous. The name was Kota crash course, but the main topic was suicide. So thousands, the number in thousands per year in Kota only, the city where people think about going to make careers and to get entry into IIT. So Lalit Kumar sir has been with students. He is not just teaching students. He has been mentoring them. He has been with them in their all problems. He is with them in their happiness. And he is like not just a mentor, not just a teacher, but an elder brother or a parent figure for students. So he has also been becoming one of the youngest authors of an IEE publication as he presented his technical paper on power distribution and automation in 2001. So there have been a lot of achievements for him. I would like to welcome Lalit sir and to please share your experiences with students. Yeah. Thanks, Kamlesh. Good afternoon, everyone. First of all, thanks to Pune News and Anhad to give me an opportunity to discuss about this very important aspect that is mental health. Maybe for next 15-20 minutes, I'll talk about some important aspects which I have learned from my own experience. अभी just थोड़ी देर पहले मिस्टर आचार्य ने एक slide end की, and in fact I found that a very nice one. I would like to extend it from there only. 80% mindset and 20% skills. So whatever I talk will be from the perspective of the students who are preparing for entrance examinations. जो JEE और NEET की तरफ जा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा मैच कर पाएंगे, but all the points will be valid for other verticals as well. Maybe like someone is going for UPSC or maybe CAT, but JEE and NEET में थोड़ा ज़्यादा perfect बैठेगा points. See, when students are preparing for exams, जब बच्चे prepare कर रहे हैं exams के लिए तो उसमें topics होते हैं. Say for example, अगर मैं JEE और NEET की बात करूँ तो they are the topics from your school only. 11th and 12th की सारे topics होते हैं. And usually students are not very stressful जब वो स्कूल के एग्जाम्स देने आते हैं. अगर 8, 9, 10, 11, 12 की बात की जाए तो फिर देखा जाता है कि they are pretty much okay with that. But the moment it comes to JEE or NEET, अचानक से they start getting jittery about it. तो उसमें skills, जैसे as I'm using the same term which Mr. Acharya used, skills was almost same है, same topic, same Newton's laws of motion, same Gauss law, everything is same. But the mindset is very different. Mindset is, there'll be like 12 lakh students appearing for the exam, 12 lakh बच्चे exam देने वाले हैं. 99% will be rejected there. What will my parents say? पेरेंट्स का भी स्टैंड कई बार ऐसा होता है कि हमने इतनी मुश्किल से आपको यहाँ पर एनरोल किया है. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेट इनटू IIT, यू हैव टू गेट इनटू AFMC. तो ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेसफुल होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो देयर आर couple of points. I'll talk about them one by one. First is how important this stress is. वाकई इसकी importance
कितनी हैं, ये फ़ायदेमंद है या फिर इट ऑलवेज बैकफायर्स. फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंस or the influence of stress. Second is what should be the right mindset of a student. Third is parents' role. So in next 15 minutes, I'll try to wind up all these 3 points. So coming to the first one, stress. So कई लोगों का कहना है कि stress नहीं होना चाहिए बच्चों को, बिना stress के पढ़ाई करनी है. See, I believe in optimum quantity, this is also a requirement. जैसे कोई बच्चा अगर 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 1.5 साल का होता है रादर, जब उसको सालाना सिखाते हैं तो उस टाइम ही थोड़ा स्ट्रेस देते ही हैं उसके ऊपर. वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसको वी आर जस्ट ट्राइंग टू ल्योर हिम कि हाँ भी ऊपर आ गया, चॉकलेट दिखाएंगे, देंगे. तो ये वहाँ भी थोड़ा सा उसको आप स्ट्रेस दे रहे हो कि वो खड़ा हो वहाँ पर. अगर वो नहीं किया जाएगा तो मे बी लाइक इट विल गेट लिटिल डिलेड देयर. अगर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो अगर कोई स्ट्रेस है ही नहीं तो हो सकता है कोई पढ़ाई भी ना करे उसमें. इट मे हैपन कि हाँ IPL, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, दिन भर मैच देखेंगे, उसका हाइलाइट्स देखेंगे, सो दे मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म. एट द सेम पॉइंट टाइम लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो नॉट गुड, विच आई विल कम टू इन माई सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज लाइक व्हाट इज द राइट माइंडसेट. माइंडसेट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का अगर उन्हें इसको ऑप्टिमाइज करना है तो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैक्सिमम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर थोड़ी क्लैरिटी कम रहती है. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कि हम 2 साल या 3 साल के लिए कहीं इनरोल हुए हैं और हमें उसको बहुत जोर लगा के पढ़ना है. And if we are able to make it to college like IIT or AFMC, then it was a success or else it's a failure. So in itself, this statement is flawed. मुझे लगता है कि ये पूरी बात ही गलत है. When it is about preparation, then this is not the actual result which is gonna decide whether a preparation was successful or not. अगर मैं precisely अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत सारे. Which field are you from? एनिमेशन. ओके ओके ओके. एनीवेज, सो हाँ यहाँ थोड़ा सा फील्ड मिसमैच हो रहा है, बट कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली विल गो इन सिंक विद व्हाट यू एग्जैक्टली यू आर परसुइंग हियर. सो व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट द राइट एसेंस ऑफ JEE और नीट प्रिपरेशन, इट इज़ नॉट कि आपने उसकी प्रिपरेशन की, एग्जाम दिया, सक्सेस हुआ तो मतलब JEE IIT मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है. It is a bit different from that. It's far more than that. When you are preparing for exams like JEE and NEET, then you are actually enhancing many skills there. अभी जैसे मैं IITs की अगर बात करूं तो फिर after graduating from IIT, you'll see 98% of the people are not sticking to their own field. जो उन्होंने 4 साल किया है वो नहीं कर रहे हैं. Flipkart, Snapdeal, Ola, Myntra, Housing.com, NoBroker.com. Most of these companies were started by 18s and they are not using the skill set of those 4 years. The reason being, when they were preparing for the exams like JEE and NEET, जो 11th and 12th का टाइम था, that was more important. और उस टाइम पर जब वो पढ़ रहे थे तो that was the time when they learned so many stress management skills, time management skills which are helping them. तो अगर ये 11वीं और 12वीं के बच्चे अगर इस चीज़ को ऐसे परसीव करते हैं कि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली दी सीट इन IIT विच विल बी हेल्पिंग अस, मोर इम्पॉर्टेंट इज दीज 2 years विच वी आर स्पेंडिंग. सो इसमें हम लोग जो स्किल्स सीख रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, किस तरह टाइम को मैनेज किया है एट दिस यंग एज. सो दैट विल मेक देम अ बेटर और अ सुपीरियर ह्यूमन एज कम्पेयर टू द फाइनल रिजल्ट विच विल दे गेट. इनफैक्ट JEE से एक दिन पहले मेरा एक सेशन होता है, लास्ट डे टिप्स. इन दैट आई टेल माई स्टूडेंट्स दैट इवन इफ यू चूज टू स्किप द एग्जाम टुमारो, कल उनका JEE का एग्जाम है, एक दिन पहले एक सेशन होता है, उसमें एक क्लियर लाइन बोलते हैं हम लोग कि अगर आप कल एग्जाम देने भी नहीं जाओगे, देन ऑल्सो इट डज नॉट मीन दैट योर प्रिपरेशन विल गो इन वेन. आपका जो 80% से ज़्यादा एडवांटेज है वो आपको इन
2-3 सालों में ही मिल गया है जब आपने अपने दिमाग को यूज़ किया है उस लेवल की एनालिसिस करने के लिए. देन एज आई सेड स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखी है. सो दीज स्किल्स विल हेल्प यू मोर थ्रू आउट योर करियर. देन कम्स द पेरेंट्स रोल, क्योंकि अप टू वेरी एक्सटेंट पेरेंट्स का एक गलत तरीके का पर्सपेक्टिव स्टूडेंट से बहुत स्ट्रेस डालता है. आई जस्ट रिसेंटली रोट एन आर्टिकल अबाउट दो एक्सट्रीम स्टेप्स टेकन बाय कोटा स्टूडेंट्स. अभी आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी पिछले 1-2 महीने में कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए थे कोटा के कई बच्चों ने. तो इन दैट आर्टिकल आई मेंशन कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियरली. द फर्स्ट वन वाज द मोमेंट द पेरेंट्स से कि नहीं हमने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं या लोन लिया है और देन फीस दे भर के आपको यहाँ तक भेजा है, और अगर आपने यहाँ से आईआईटी या एएफएमसी में एडमिशन नहीं लिया देन एवरीथिंग विल गेट वेस्टेड. सो दैट पुट्स लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक जेई जहाँ पर वैसे ही कट ऑफ 16% 17% रहता है. आई मीन दिस ऑल्सो मैटर ऑफ फैक्ट. सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स JEE advanced qualifying cutoff has been just 16-17%, not more than that. तो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, अपने मॉक टेस्ट के एग्जाम देते हैं, बीच में दे डोंट स्कोर मच. फिर अचानक से पेरेंट्स दिमाग में आते हैं उनके, और पेरेंट्स का फ़ोन आता है शाम को कि कैसा गया टेस्ट, और इस बार भी नंबर नहीं आए तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऑल सच थिंग्स. देन इट पुट्स अगेन लॉट्स ऑफ प्रेशर देयर. मेरे हिसाब से इट शुड बी अदर वे अराउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वो जो 2 साल का पीरियड है उसको अगर उन्होंने ठीक से भी वहाँ टाइम इन्वेस्ट किया और एग्ज़ाम दे या ना दे फाइनली, इट विल बी एन एडवांटेज. सेकेंडली दे शुड क्रिएट एन इकोसिस्टम. वो घर पे अपना उनका इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि बच्चे उनसे खुल के बात कर पाएँ. अगर बच्चे पेरेंट्स से डरते हैं कोई बात बोलने में, तो मुझे ये नहीं लगता कि बच्चों की गलती है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि पेरेंट्स की गलती है. आई रिपीट, अगर बच्चे किसी भी रीज़न से पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं कि हमारे नंबर कम आए या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सो इट इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज़ द मिस्टेक ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने घर में उस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे खुल पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कम अप विद सम ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. तो उसके लिए सबसे पहले टाइम बढ़ाना चाहिए, और टाइम बढ़ाने के लिए यू कांट इंटरफेयर विद देयर शेड्यूल. यू ट्राई टू इंक्रीज द टाइम वाइल मे बी हैविंग मील्स. जब खाना खा रहे हैं तो खाने का टाइम अपना मैच कर लीजिए. बाहर यू कैन गो फॉर इवनिंग वॉक सो दैट ज़्यादा देर तक आप उनसे बात कर पाएँ. सेकेंडली, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया है, से मॉक टेस्ट एग्जाम दिया है उसने, और व्हेन ही कम्स बैक होम, पेरेंट्स कैन ईजिली फिगर आउट बाय द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट कि इसका एग्जाम खराब गया है, अच्छा गया है, और बहुत ही सटल तरीके से धीरे से पूछ सकते हैं और कैसा गया एग्जाम, ओ कोई बात नहीं, अच्छा नहीं गया, इट्स ओके. मे बी एग्जाम नहीं अच्छा जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट ओनली दी कॉन्सेप्ट्स, कई बार एग्जाम स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं. कई बच्चे बहुत कुछ जानते हैं एग्जाम के बारे में, लेकिन जब वो पहला क्वेश्चन आया उनसे सॉल्व नहीं हुआ, देन अगेन दे स्टार्ट गेटिंग जिटरी अबाउट इट, और फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन लाइन से खराब होता है एंड इट अकाउंट्स फॉर अ ब्लैकआउट. तो अगर पेरेंट्स अगर डायरेक्टली बोल पाएँ कि कोई बात नहीं, पेपर खराब हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं, डर गया था एग्जाम में, अच्छा डरा नहीं था, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं की थी पहले, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता था जो तुमने छोड़ दिया था, या फिर जो एग्जाम में ज़्यादा आ गया था. सो इफ दे कैन ओपन अप विद द स्टूडेंट, देन ज़्यादा आसानी होगी कि बच्चे भी खुल के बता पाएंगे. बिकॉज JEE or NEET preparation is not only about the preparation by a student, it is actually a combined effort of students, of course, सबसे ऊपर students आते हैं, then parents and their teachers as well. तो ये तीनों का पूरा मिली भगत है जिसका एक रिजल्ट निकलता है. अगर पेरेंट्स ये सोच लेंगे हमने सिर्फ फीस भर दी हमारा काम हो गया, then definitely it doesn't work this way. I remember in my case when I was a student, जब मैं क्लास 11th में था और कोई एग्ज़ाम देने गया और नंबर कम आ रहे हैं, तो फादर कभी भी डांटते नहीं थे इस चीज़ को लेकर कि नंबर कम क्यों आए, या फिर कुछ नहीं हो सकता तेरा. वो सबसे पहले क्या होता है, पहले पूरा पेपर दोबारा मुझे पकड़ाए देते कि ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम नंबर कम आए, इट्स ओके, अभी दोबारा पेपर घर पे करके देखे एक बार, एंड देन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. सो मोस्ट ऑफ टाइम एक ही रीज़न निकल के आता था कि
फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में कभी अटक गया एग्जाम में, अचानक से ब्लैकआउट आ गया, फिर पूरा पेपर खराब हो गया, बट घर पे कर रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं, आई एम एबल टू सॉल्व द होल पेपर. देन देयर वाज अ बैकअप फ्रॉम माय फादर कि ठीक है कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए, इट्स ओके, बट यू न्यू अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक नाउ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होता है तो फिर यू कैन बी लिटिल मोर केयरफुल इन एग्जामिनेशन. यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, बिकॉज इन पेपर लाइक जेई मोर देन सेलेक्टिंग ए क्वेश्चन, रिजेक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. कौन सा करना है उसका इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि लगभग 20% मार्क्स पे तो आपको आईआईटी मिल जाता है, जो कि इंडिया में सिर्फ टॉप 1% लोगों को मिलता है. सो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट इवन 1% ऑफ द कंट्री इज एबल टू क्रॉस 20% मार्क. सो these are the main things which students and parents must keep in mind, that this is a journey which is more important rather than the final result. And the parents also come up with a very important role where they have to open the communication. And at the same point in time, any type of stress given by these parents in terms of कि हमने फीस भरी है या फिर आपके ऊपर पूरी की पूरी दामोदार है, और जब अगर आप ठीक नहीं करोगे तो पूरी फैमिली को फ़र्क पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ता ही चले जाएगा. When it comes to examination, then again see there are not many students from engineering or medical, so I'll not be getting into the further details of that. But these generic points will definitely remain same. Before I close, I would like to just quote couple of examples here from my experience. बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जहाँ पर हमने जो 2 साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. दे वर नॉट फाइंडिंग इट ईजी टू हैंडल द कोर्स. आई मीन आई वोंट माइंड यूजिंग अ नेम ऑल्सो. देयर इज अ नेम बाय द नेम संग्राम गायकवाड. एक बच्चा था, ही केम टू पुणे, ही वांट टू गेट टू आईआईटी. उससे पहले उसने 2-3 कोचिंग क्लासेस में ट्राई किया. दे हैव टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, देन ओनली एडमिशन होता है कोचिंग में. सो एवरी टाइम ही गॉट द सेम रिजल्ट that you are not fit for science. चाहिए तो बहुत बड़ी बात है, you are not fit for science. So then he came to us. We are not very particular about the entrance criterion. अगर हमें लगता है कि स्टूडेंट थोड़ा मेहनत कर सकता है और बेसिक चीज़ समझ में आती हैं, we don't mind mentoring such students. So he joined us and he started struggling right from the day one. Day one से ही उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही थी. बट हिज पेरेंट्स हैड अ वेरी पॉजिटिव रोल टू प्ले. उसने क्लियरली बोल दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वापस मुझे घर जाना है. घर वॉज इन नीरा छोटे टाउन से आया था वो. देन पेरेंट्स मेट अस. अल्टीमेटली वी हैड अ डिस्कशन विद दैट स्टूडेंट कि यार तू आईआईटी और ये सब बातें छोड़ दे, बट तू एक काम कर, 11-12 वैसे भी तेरे को करनी है और यू जस्ट स्टार्ट एन्जॉइंग दिस. और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में, तो वी स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम एडिशनली ऑल्सो. तो धीरे धीरे करके ऐसे प्रोसेस बढ़ा. तो इस पूरे प्रोसेस में अगेन द मेन पॉइंट इज ही अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर. अल्टीमेटली धीरे धीरे करते करते लास्ट में देयर वाज अ स्टेज वेयर ही स्टार्टेड डिलीवरिंग. उसको एग्जाम में नंबर धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए. स्टूडेंट हु वाज रिजेक्टेड बाय कपल ऑफ क्लासेस एंड ही वाज स्टेटेड अनफिट फॉर साइंस, क्लियर्ड जेई, went to IIT. Not only IIT, he joined computer science in IIT. Not only IIT computer science, he was a department rank 1 in IIT computer science. Starting from a point where he was not given science also. So just because he had a very nice journey for 2-3 years, where he was mainly focusing on what I have to learn rather than where I will actually end up. ये दोनों के बीच का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अगर आप डे एंड नाइट ही सोचोगे कि भाई रिजल्ट क्या आएगा, इट मे बैकफायर ऑल्सो. सो फॉर हिम दिस वर्क, एंड आई एम श्योर लाइक फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इट कैन वर्क, बट पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू pitch in a very right way. So thank you very much. Thanks a lot.